Hi, my name is Amit. I'm a senior mentor at MBAZ. We are a CAT training institute based in Patna. Today we have come up with a HCF and LCM question. It's a very beautiful question, a question where a lot of manual searching is involved. But let us first go through the question, understand what the question asks, and then we'll discuss the solution also later on. So the question is that two numbers HCF is given. HCF of A and B is 3. HCF of A and B is 3. From here we can conclude that A is some multiple of 3 and B is also a multiple of 3. Both A and B are multiple of 3 and there is nothing common between K1 and K2. This we can very easily conclude. Similarly, HCF of B and C is 4. So you can say B is a multiple of 4 and C is also a multiple of 4, right? And there is nothing common between N1 and N2. Now, considering both of these, what can we conclude? We can say that A is some multiple of 3. A is a multiple of 3, so some 3x1, let's say. B is a multiple of 3 as well as a multiple of 4. So you can say B is a multiple of 12, right? A multiple of 3 as well as 4, so multiple of 12. And C is a multiple of 4. C is a multiple of 4. So let us keep it this way. A is 3 times x1, B is 12 times x2, C is 4 times x3. We also know that between x1 and x2 there is nothing common because HCF of A and B is 3 only. So x1 cannot have anything, x1 and A and B should not have anything common other than 3. So it means that x1 is not a multiple of 2 because x1 में अगर x1 अगर even हो जाएगा तो दोनों का HCF 3 नहीं होगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है. So x1 does not contain 2. So x1 is not a multiple of 2. This is not a multiple of 2 or this is not even. Right? This you can conclude from here. और इसी तरह से B और C का HCF 4 है, यानी 4 छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है. यानी x3 में 3 नहीं हो सकता बिकॉज x3 में अगर 3 हो गया तो 4 इंटू 3 12 और 12 यहाँ भी है तो इन दोनों का HCF 4 नहीं 12 हो जाएगा. इसलिए x3 is not a multiple of 3. So x1 is not a multiple of 2 and x3 is not a multiple of 3. This much we know from these two statements. So these two statements are giving us a lot of information. A is a multiple of 3, B is a multiple of 12, C is a multiple of 4. A is a multiple of 3 but not even. B is a multiple of 4 but is not a multiple of 3. So this we know from the first two statements. Then it also says at last that it is given that A and C are co-primes, right? A and C are co-primes. So A और C अगर co-prime है इसका मतलब A और C में कुछ भी common नहीं है. So मैं ये भी कह सकता हूँ कि x1 और x3 में कुछ common नहीं होगा. अगर ऐसा है तो तीनों का LCM ABC का LCM क्या होगा? 3 12 4. तो यहाँ तो LCM 4 12 हो गया. x1 x2 में भी कुछ कॉमन नहीं बिकॉज दोनों में का HCF 3 है. x2 x3 में भी कुछ कॉमन नहीं बिकॉज दोनों का HCF 4 है. और x1 x3 में भी कॉमन नहीं बिकॉज दोनों कोप्राइम्स हैं. इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो LCM होगा दैट इज 12 टाइम्स x1 into x2 into x3 and this is given to you. The HCF is how much? 504. LCM is how much? 504. लिखता है LCM of ABC is 504. So from here you get x1 into x2 into x3. 12 4 जा 48, 42 आ गया. कितना आ गया? 42. अभी 42 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? We can write it as 1 into 1 into 42. No, we can also write it as 2 into 21 into 1. We can also write it as 2 into 3 into 7, right? 42 में क्या कर सकते हैं? इसमें से 2 निकाल लो तो 2 into 21 into 2. इसमें से 2 और 3 दोनों निकाल लो या एक और क्या कर सकते हो इसमें से सिर्फ 3 निकालो. सो 3 into 14 into 2. इसमें से सिर्फ 7 निकालो तो 7 into 6 into 1 और इसमें से 2 और 3 दोनों निकाल लो तो 2 into 3 into 7, राइट? सो ये हमारे डिफरेंट वेज है 42 को लिखने का. कैसे कर रहे हैं? थिंक सिस्टमैटिकली, थिंक लॉजिकली. 42 है तो 42 into 1 into 1 तो हो ही सकता है. 42 में से 2 निकाल लो तो 2 into 21 into 1. 42 में से 3 निकाल लो तो
कितना हो जाएगा 3 इंटू 14 इंटू सॉरी 1, राइट, 3 इंटू 14 इंटू 1। 42 में से 7 निकालो तो 7 इंटू 6 इंटू 1। 42 में से 2 और 3 दोनों अलग कर दो, तीनों नंबर अलग कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 7। सो दीज आर माई पॉसिबिलिटीज। अब देखो यहाँ पे x1 x2 और x3 में क्या क्या लिया जा सकता है। यहाँ पे देखो 1 1 42 है, तो मुझे पता है कि x2 x1 इवन नहीं है, राइट, x1 इवन नहीं है, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, तो 42 x1 में नहीं आ सकता, ये मुझे मालूम है। और x3 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी x3 में 3 से डिविजिबल नंबर नहीं आना है, जबकि 42 तो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी 42 ना x1 का वैल्यू हो सकता है ना ही x3 की वैल्यू हो सकती है, बिकॉज 42 इवन है तो x1 नहीं होगा, 42 3 से डिविजिबल है तो x3 भी नहीं होगा, सो 42 विल कम हियर, और ये दोनों 1 1, तो एक पॉसिबिलिटी मिल गया x1 x2 x3 के लिए। टेक दिस वन 2 इंटू 21 इंटू 2। नाउ 2 आप कहां नहीं डाल सकते, यू कैनॉट पुट 2 हियर बिकॉज x1 2 नहीं हो सकता। यू कैनॉट पुट 21 हियर बिकॉज 21 यहां डालोगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, सो यू कैन पुट 21 हियर, राइट। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 21 नहीं आएगा, x1 में 2 नहीं आएगा, x3 में 21 नहीं आएगा, तो क्या क्या होगा, अगर x1 में 2 नहीं आएगा, x1 में 2 नहीं आएगा, तो मैं 2 यहां डाल सकता हूं या 2 यहां डाल सकता हूं, दो केस। अच्छा 22 यहाँ डाल दिया, अब 21 तो यहाँ नहीं आएगा x3 की जगह, तो 21 यहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, राइट। देन इस वाले में देखो 2 यहाँ पे डाल दिया तुमने, अभी क्या बचा मेरे पास 21 और 1। नाउ 21 तो यहाँ भी हो सकता है और 21 यहाँ भी हो सकता है, सो वी कैन हैव 21 एंड 1 एंड वी कैन ऑल्सो हैव 21 एंड 1, राइट। ये तीनों केस पॉसिबल होगा बिकॉज 21 तो बस 3 का मल्टीपल यहाँ नहीं होना चाहिए, तो 21 तो इन दोनों यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, x1 में 2 नहीं होना चाहिए, तो मैं 21 यहाँ भी दे सकता हूँ, 21 यहाँ भी दे सकता हूँ। सो हमारे 3 केसेस और मिल गए, राइट। सो दिस डन, टेक दिस वन 2 3 7। You can't put 2 here, you can't put 3 here. So you'll have to put 2 here or here, right? अब यहाँ 2 डाल दोगे तो 3 कैसे, यहाँ तो 3 डाल नहीं सकते हो, 3 तो यहीं पे डालना पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा 7, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे 2 डाल दिया तो बचा 3 और 7, 3 और 7 में से कोई भी कहीं भी डाल सकते हैं ना, यहाँ 3 यहाँ 7 या यहाँ 7 यहाँ 3, बिकॉज x1 x2 x3 में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए तो 2 नहीं है, x1 में 2 नहीं है, तो ये यहाँ पे भी 3 केसेस बन गए, सो डन विद दिस आल्सो। अब बचा क्या 3 14 1, x1 x2 x3, 3 14 1, you can't put 14 here, so you'll have to put 14 here or 14 here, right। अभी 14 यहाँ पे डालोगे तो 3 यहाँ डाल नहीं सकते x3 में, उस 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 3 डालना होगा, यहाँ पे 1 डालना होगा। इस केस में 3 मैं कहीं भी डाल सकता हूँ, वी कैन पुट 3 हियर और वी कैन पुट 3 हियर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें कितने केसेस मिल गए, 3 केसेस, सो दिस इज ऑल्सो डन। अब बचा 7 6 1। 7 6 1 में 6 है, 6 यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज 2 से डिविजिबल है, 6 x3 की जगह पे भी नहीं आ सकता बिकॉज 3 से डिविजिबल है, सो 6 ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो 6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सो वी कैन हैव 7 एंड 1, वी कैन ऑल्सो हैव 7 एंड 1 लाइक दिस, राइट। सो यहाँ पे हमारे इतने सारे पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं, राइट। और सब जगह नंबर क्या है 3x1 12x2 4x3, ऐसे करके सारे नंबर्स मिल जाएंगे, 3 इंटू 1 40, 2 इंटू 2 एंड 1, राइट। सो 142 1 21 2 1 21 2 1 2, तो ए बी और सी के जो ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे इसमें कई सारे हमें पॉसिबिलिटीज मिल रहे हैं। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so there are 12 different triplets, order triplets ABC that is possible, order nahi 12 triplets of A B and C are possible. So this was a question which had involved little bit of concept of LCM and HCF and some manual searching, okay, so you have to manually search for no options here, अगर जैसे मैंने यहाँ पे कर रहा है, ये सब मैनुअली सर्च कर रहा है ना, इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, there is a manual searching that is happening, but in that manual search also it has to be a guided search, it cannot be a totally randomized search because in that case it will take a lot of time, so there has to be a proper method, a logical method to search also, so that your search becomes guided, you not diverge too much or digress too much from the actual numbers or actual answers, right. So I hope you have understood the method also and know the explanation also, and you have learned some important concepts through this question.
So thank you guys. Thank you for watching our channel. Best wishes for your upcoming CAT exam. Thank you.